Okay, students, so on last lecture we were discussing the Chomsky hierarchy. In this hierarchy we have discussed four kind of languages: type 0, type 1, type 2 and type 3. Okay, and we have discussed what what is the name of the language of each type. Type 0 is known as the phrase structure or recursively enumerable language. Type 1 is known as the context sensitive language, and type 2 is known as the context free language, and type 3 is known as the regular language. So up till now about the regular language we have discussed a lot, and we have discussed its tool by which we can get it accepted or by which we can generate the words in the language. So these are the finite automatons and regular expressions. So we have discussed all these, and then we have discussed it in terms of grammar. Okay, so in terms of grammar we will be having set of production rules in the grammar, which is the kernel of generating the words. So each production rule is of the form of x to y, where x may be any string. So there are certain things which we can replace for x and y. So depending on what we can replace for x and y, our type of grammar is decided. Okay, so as in type 0, if x is any string with non-terminals and y is any string, means unrestricted. So this type of productions are called type 0 productions. Similarly, if x is any string with non-terminals and y is any string as long as or longer than x, means length reduction of working string is not possible. So such languages are called type 1 language or the context sensitive language. If we look at the difference between the type 0 and type 1, there is only one difference. In type 1 we cannot reduce the length of the working string, is it? Jabki type 0 mein reduction possible, means something if we want to erase, in type 0 it is possible. In type 1 erasing something is not possible. Then we come to the context free. In context free, x is one non-terminal, means now we are having a great restriction over the x. So it will be only one non-terminal and y may be any string. And for regular languages, we will further put restrictions on the y as well. So x तो जैसे type 2 में one non-terminal है वैसा ही रहेगा, लेकिन टाइप 3 में y पर भी हम restriction लगाएंगे. ये जो इसका फॉर्मेट है ये या तो tn फॉर्म का होगा या y इज इक्वल टू t फॉर्म का होगा, इज इट? सो ये हमारा टाइप 3 होगा, तो ये हमारा रेगुलर ग्रामर हो जाएगी. So this we have discussed on last lecture, and then we started discussing the types of the grammar. We were taking certain examples. So for type 0 we have seen that phi alpha psi to phi beta psi kind of productions we will be having in our grammar. Okay, and we have taken certain examples and tried to see that what is phi, what is psi, what is alpha and what is beta. So phi and psi are left and right context respectively. Okay, and one is example we were seeing where we done some mistake but nobody pointed out yesterday. Okay, so this was the AC to to A. So we will find the left context and right context. So its left context is A, so phi is A. Okay, so because A and A is matching, लेफ्ट राइट हैंड साइड से सी इधर से कुछ आ ही नहीं रहा, तो मीन्स राइट कंटेक्स्ट नहीं है, तो राइट कंटेक्स्ट इसका क्या होगा? नल. सो साई इज नल, सो राइट कंटेक्स्ट इज नल. Then whatsoever is in between the left context and right context is alpha. So my alpha is C. And now from what string I am replacing this alpha? What string I am replacing this C? तो C को replace करने के लिए यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है. So that's why the replacement string beta, it is not A, it is epsilon. It is epsilon. So this was the mistake which we have committed yesterday. So that I am correcting now. Okay. तो ये जो है, I hope it is clear to everyone. Class. Is it clear, class? What change I have done in this? Is it clear or not, class? Are you getting my voice? Students, somebody respond. Are you getting my voice? Yes, sir. Clear. Okay, clear. So this is how we find the type of a particular production. So this is a type 0 production. Here what we are doing, we are simply erasing C. Erasing C in a particular situation when left context is
A, and for the right context is null. So anywhere if we are getting left context is A and right context is null, then we can erase the C. Okay, so that's why anywhere we'll get AC, we will convert it by simple A. And if we look at this one, C to null. So here also we can see that left context is null, right context is null, so that's why phi and psi both are null. Okay, then alpha will be the C. Okay, alpha will be C, and then beta will be, यहाँ दिया हुआ है सीधे null, so epsilon will be there. So here also we are erasing C. So here also we are erasing C, but there is a difference between these two. यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो है C को इरेज कर रहे हैं, जब हमारे पास लेफ्ट कंटेक्स्ट में A है और राइट कंटेक्स्ट में null है. Here we are erasing C in एनी कंटेक्स्ट, जब इसके इधर भी नल है इधर भी नल है, यानी कि सी मेरा किसी भी वर्किंग स्ट्रिंग में कहीं पे भी आ जाए, उसके इधर वाला नल ले करके आई कैन सिंपली रिप्लेस इट बाय एप्सिलॉन. ओके, सो आई कैन सिंपली इरेज सी इन एनी कंटेक्स्ट, So this is the difference between these two. So all these productions are type 0 productions because we are able to write these productions in the form phi alpha psi to phi beta psi. In this form we are able to write all these productions. So that's why these all productions are type 0 productions. In fact, you write any production that you can always treat as type 0 production. So every production is a type 0 production. So every grammar is a type 0 grammar. अगर मेरी ग्रामर में सारे के सारे प्रोडक्शन टाइप 0 प्रोडक्शन है तो वो मेरी ग्रामर क्या कहलाएगी? टाइप 0 ग्रामर. सो टाइप 0 ग्रामर हैज ऑल इट्स प्रोडक्शन ऑफ टाइप 0. तो अगर एक ग्रामर में आपके मल्टीपल प्रोडक्शन हो सकते हैं, मान लीजिए 4 प्रोडक्शन रूल्स हैं, 4 रूल्स आर देयर एंड ईच ऑफ दीज 4 रूल्स इज टाइप 0, देन द होल ग्रामर इज टाइप 0 ग्रामर. ओके, और ये मैंने आपको बताया कि आप कोई सा भी प्रोडक्शन लिखें, कैसे भी लिखें, यू कैन ऑलवेज राइट इट इन दिस फॉर्म. सो एवरी प्रोडक्शन इज ए टाइप 0 प्रोडक्शन. सो एवरी ग्रामर इज ए टाइप 0 ग्रामर. नाउ वी कम टू द टाइप 1 ग्रामर. टाइप 1 ग्रामर जिसको कि हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी कहते हैं, और कुछ टेक्स्ट में आपको एक कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट के नाम से मिलेगी. सो व्हाटएवर नेम यू गिव टू इट, बेसिकली इट इज टाइप 1 ग्रामर. टाइप 1 ग्रामर का जो प्रोडक्शंस का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? phi a psi to phi beta psi. मीन्स व्हाट डिफरेंस वी आर टेकिंग. पहले हमारा phi अल्फा psi था, इज इट? अब इसकी जगह हम क्या ले रहे हैं? एक सिंगल वेरिएबल कैपिटल A. मीन्स नाउ दिस अल्फा विल नॉट बी एनीथिंग, इट विल बी A. अब आप कहेंगे कि इस साइड मैंने ये भी लिखा हुआ है phi अल्फा psi इज इक्वल टू phi बीटा psi. यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल. और जो मैंने आपको चोमेस्की हायरार्की की टेबल दी है उसमें भी मैंने यही प्रोडक्शन लिखा हुआ है टाइप 1 में. टाइप 0 और टाइप 1 सेम है. तो अभी हम देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस पड़ता है. फिलहाल अभी आप देखिए कि आपके टाइप 1 प्रोडक्शन किस फॉर्मेट के होंगे? इस फॉर्मेट के होंगे. phi a psi मीन्स यू विल बी रिप्लेसिंग लेफ्ट और राइट कंटेक्स्ट. तो होगा, लेफ्ट कंटेक्स्ट भी होगा, राइट कंटेक्स्ट भी होगा, बट यू विल बी रिप्लेसिंग ओनली ए सिंगल वेरिएबल थ्रू सम स्ट्रिंग. और चूंकि इसमें लेंथ रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, सो इस a की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं बट एप्सिलॉन नहीं लिख सकते. तो दैट्स व्हाई दिस बीटा कैन बी एनी स्ट्रिंग. a के प्लेस पे, इस वेरिएबल के प्लेस पे यू कैन राइट हियर बीटा मींस एनीथिंग, बट इट कैन नॉट बी नल, यानी लेंथ रिडक्शन पॉसिबल नहीं है. इज इट क्लियर? सो ये इस फॉर्मेट के हमारे स्ट्रिंग्स होंगे. सो लेट अस टेक सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ टाइप 1 प्रोडक्शंस. टाइप 1 प्रोडक्शंस का पहला एग्जांपल हम लेते हैं. जस्ट ओके, दिस इज A B to A B C capital D B. Suppose this is the production. So this can be a type 1 production. Just look at this is A. इसके बाद कैपिटल A आ रहा है. यहाँ देखिए ये स्मॉल a यहाँ आपको मैच कर रहा है. ओके, सो लेफ्ट कंटेक्स्ट phi इज इक्वल टू व्हाट? A. अब राइट से मैच करना शुरू करेंगे. दिस इज B. इसके बाद ये A आया. अब देखिए यहाँ B तो मिल रहा है, बस इसके आगे D मिल रहा है, तो यानी कि यहाँ से डिफरेंस शुरू हो गया, तो केवल इतना पोर्शन आपका psi में आएगा, राइट कंटेक्स्ट. तो psi इज इक्वल टू स्मॉल b. अब ये बीच में क्या आया? बीच में आपका देखिए एक सिंगल वेरिएबल बचा. देखिए यहाँ मुझे क्या चाहिए था? एक सिंगल वेरिएबल चाहिए था. इज इट? सिंगल वेरिएबल बचा, तो A हो गया मेरा. अब बीटा क्या है मेरा? व्हाट इज
जो भी राइट हैंड साइड पे बीच में बचा ये मेरा क्या है, बीटा. सो बीटा विल बी स्मॉल b small c capital D. This will be beta, and as it is not equal to epsilon, so that's why it is a type 1 production. It is a type 1 production. Now if you look at this, can also be the type 0 production. Type 0 production क्या, देखिए अल्फा इज इक्वल टू ए एंड बीटा इज इक्वल टू दिस थिंग, क्योंकि अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, फाई साई है, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में जब लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट स्मॉल ए है, राइट कॉन्टेक्स्ट स्मॉल बी है, I can always replace this A, means this alpha, with this beta, that is B, C, D. Okay, so it is a type 0 production as well. Type 0 production as well. अब मैंने आपको बताया टाइप 0 टाइप 1 प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, केवल कि टाइप 1 में लेंथ रिड्यूस नहीं हो सकती. तो आप देखिए यहाँ पर मेरा अल्फा जो है A, इट्स लेंथ इज 1, बीटा क्या है B, C, D, इट्स लेंथ इज 3. So length reduction is not there, so that's why it is type 1 also. It is type 0 as well as type 1. But जब भी मुझे प्रोडक्शन का टाइप बताना होगा तो मुझे क्या बताना होगा, जो भी मेरा फाइनल टाइप है वो बताना होगा. Is it? So that's why I will call this as the type 1 productions. Okay. So whatsoever examples I have taken yesterday for type 0, you will see that some of those productions can be classified into further finer types. यानी कि जैसे आप इस जब मैं डिस्कशन किया था, मैं इसको क्या कहता, मैं इसको टाइप 0 प्रोडक्शन कहता, क्योंकि मैं इसे फाई अल्फा साई से फाई बीटा साई के फॉर्म में लिख सकता हूं. इज इट? उसके बाद जो है, लेकिन अब मैंने जो फर्दर ये फॉर्म देखी, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, तो यानी कि इट इज अ टाइप 1 आल्सो. मुझे क्या रिटर्न करना, मुझे क्या जो फाइनल टाइप है वो रिटर्न करना, तो इट इज अ टाइप 1 प्रोडक्शन. Now take another example. Suppose now your production is A, B, 2, A, small b, capital B, and say small c. Is it? Okay. अब आप देखिए ये प्रोडक्शन कैसा है आपका. अगर आप यहाँ देखिए, इधर से मैच कराना शुरू करिए, ए मैच करता है, इसका बी आ गया, यहाँ बी तक पहुंचने के लिए ए भी चाहिए, बट दोनों मैच नहीं कर रहे तो ये नहीं हो सकता, केवल इतना हिस्सा आपका लेफ्ट कंटेक्स्ट होगा. सो फाई इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल ए. दिस इज योर लेफ्ट कंटेक्स्ट. राइट कंटेक्स्ट देखिए, सबसे पहले मुझे कैपिटल बी मिल रहा है, यहाँ कैपिटल बी नहीं मिल रहा है, यहाँ सी मिल रहा है, तो यानी कि कंटेक्स्ट मैच नहीं कर रहा है. नहीं कि राइट कंटेक्स्ट क्या है मेरा, होगा एम्प्टी. राइट कंटेक्स्ट मेरा क्या है, एम्प्टी है. देखिए राइट कंटेक्स्ट एम्प्टी है. इज इट? सो अब मेरा क्या बचा, ये वेरिएबल बचा. सो दिस इज माय ए व्हिच आई एम रिप्लेसिंग. ओके, नाउ व्हाट इज माय बीटा, बीटा इज दिस वन, जो कुछ भी इसके बीच में बचा, तो बीटा इज this B, capital B and small c, and as it is not equal to null, so that's why length reduce नहीं हो रही. आप देखिए यहाँ केवल एक लेंथ है और यहाँ मैं 3 लेंथ के स्ट्रिंग से इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, so length is not reducing, so that's why it is type 1. अगेन इसको अगर चाहते तो हम टाइप 0 भी लिख सकते थे. लेफ्ट कंटेक्स्ट A है, राइट कंटेक्स्ट नल है, अल्फा इज दिस B and beta is this B, B, C. Is it? So ये phi alpha psi to phi beta psi के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. So it is type 0 also. But as we are seeing that, यहाँ पे अगर आप रेस्ट्रिक्शन देखिए, टाइप 0 टाइप 1 में डिफरेंस क्या है, सेम एज टाइप 0. रेस्ट्रिक्शन क्या है, केवल अल्फा की लेंथ बीटा से छोटी या मैक्सिमम इसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि बीटा हमेशा बड़ा होना चाहिए अल्फा से, लेंथ रिड्यूस नहीं होनी चाहिए. सो लेंथ यहाँ रिड्यूस नहीं हो रही, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो सेइंग दैट इट इज टाइप 1. बेसिकली टाइप 1 जितने भी टेक्स्ट में है वो इस फॉर्मेट में दिया गया है, उसमें वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम एक बार में एक ही वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे. देखिए अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, टाइप 0 ग्रामर में क्या है, वी कैन रिप्लेस ए स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग, while in type 1 we can replace a variable with some string. This is the difference between the type 0 and type 1. Okay, so लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये फॉर्मेट भी दिया हुआ है with this restriction. So this basically is not type 1, it is type 0, type 0 monotonic. Monotonic means कि जहां पर लेंथ रिड्यूस ना हो रही हो. सो ये टाइप 0 का एक स्पेसिफिक केस है जहां लेंथ रिड्यूस नहीं होती, इट इज टाइप 0 मोनोटोनिक. बट इसको टाइप 1 भी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको टाइप 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक वन एग्जांपल दैट वाज BA टू AB. ये एग्जांपल हमने कल भी लिया था अगर आपको ध्यान हो. ठीक है, BA टू AB. अब इसमें क्या देखिए, लेफ्ट कंटेक्स्ट क्या है, नल है, राइट कंटेक्स्ट क्या है, नल है. अल्फा इज this BA, okay, and beta is this AB. Okay, so phi is
null, psi is null, okay, alpha is BA and beta is AB, okay. So अब आप देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा की अगर लेंथ आप देखें तो देखिए बीटा की लेंथ अल्फा के बराबर है, तो लेंथ रिडक्शन नहीं है, तो कायदे से ये टाइप 1 होना चाहिए, कायदे से ये टाइप 1 होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को फॉलो करें कि हम एक बार में केवल एक वेरिएबल ही रिप्लेस कर सकते हैं, यहां हम रिप्लेस क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट रिप्लेसिंग ए वेरिएबल, वी आर रिप्लेसिंग ए स्ट्रिंग। कंप्लीट BA वी आर रिप्लेसिंग विद AB, we are not replacing only single B, we are not replacing only single A, we are replacing the whole BA with AB. So that's why ये इस definition को follow नहीं करता, so that's why we will not say that it is type 1, but कुछ टेक्स्ट में आपको ये कहा जाएगा कि ये टाइप 1 है। क्यों? क्योंकि मैं इसको टाइप 1 में कन्वर्ट कर सकता हूं। बेसिकली इट इज टाइप 0 मोनोटोनिक, इट इज टाइप 0 मोनोटोनिक। अगर कोई भी टाइप 0 मोनोटोनिक ग्रामर आपके पास है तो आप उसको टाइप 1 ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसी एग्जांपल को आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं कि कैसे मैं इस टाइप 0 मोनोटोनिक ग्रामर को जो है कन्वर्ट कर सकता हूं। सपोज दिस इज माई BA से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। अब BA टू AB ये मेरे पास प्रोडक्शन है। अब मैं इस प्रोडक्शन को नहीं लेता, मैं इसकी जगह कुछ और प्रोडक्शंस लिखता हूं। आई राइट BA टू B से T1, ओके, BA टू B T1। तो अब आप देखिए ये मेरा टाइप 1 होगा कि नहीं होगा। आप इस प्रोडक्शन को देखिए, इस प्रोडक्शन का लेफ्ट कंटेक्स्ट मेरा क्या है, B, रिप्लेसमेंट मेरा वेरिएबल क्या है, A, और किससे रिप्लेस करूं, T1 से, और राइट कंटेक्स्ट क्या है, देखिए नल। ये लेफ्ट कंटेक्स्ट, ये राइट कंटेक्स्ट, तो ये लेफ्ट कंटेक्स्ट तो यहाँ आ गया, राइट कंटेक्स्ट यहाँ, इसकी जगह ये रिप्लेस हो रहा है T1, इज इट। यानी कि केवल एक वेरिएबल को रिप्लेस कर रहा हूं और लेंथ रिड्यूस नहीं हो रही है, इज इट। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, टाइप 1, टाइप 1, ओके। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं BA से कहां पहुंच गया, BT1 पे। अब मैं लिखता हूं BT1 टू AT1, इज इट। आई कैन राइट दिस। अब देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ क्या है, देखिए लेफ्ट कंटेक्स्ट नल है, लेफ्ट कंटेक्स्ट नल है, राइट कंटेक्स्ट T1 है, राइट कंटेक्स्ट T1 है, लेफ्ट कंटेक्स्ट नल है, राइट कंटेक्स्ट T1 है। और B को किससे रिप्लेस किया, बेसिकली मैंने A से रिप्लेस किया। क्योंकि एक ही वेरिएबल को एक बार में रिप्लेस कर रहा हूं, लेंथ रिड्यूस नहीं हो रही, सो दिस इज ऑल्सो टाइप, इज इट। सो BT1 से मैं कहां पहुंच गया, AT1 पे। अब मेरे पास क्या है, AT1, AT1, इसको मैंने क्या लिखा, AB। यानी कि एक तरह से आप देखिए मैंने T1 को B से रिप्लेस किया। अब आप यहाँ पे देखें तो लेफ्ट कंटेक्स्ट क्या है, A, लेफ्ट कंटेक्स्ट है A, राइट कंटेक्स्ट क्या है, नल, राइट कंटेक्स्ट क्या है, नल, और T1 को किससे रिप्लेस किया आपने, B से रिप्लेस किया। तो चूंकि एक बार में एक ही वेरिएबल को रिप्लेस किया आपने और लेंथ रिड्यूस नहीं हो रही, तो दिस इज ऑल्सो टाइप 1। आप देखिए मैंने केवल टाइप 1 प्रोडक्शंस यूज किया और मैं कहां से शुरू हुआ था, मैं BA से शुरू हुआ था और अल्टीमेटली कहां पहुंच गया, AB पर पहुंच गया, is it? So, यही मेरा प्रोडक्शन था, BA to AB, okay? So this I can do only using type 1 production. So that's why in some text it is called that BA to AB, this is type 1, okay? Actually it is type 0 monotonic, but it can be converted into a set of type 1 production. So that's why sometimes it is also called type 1. Otherwise type 1 के लिए आपको क्या करना है, हमेशा इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करना है, phi a psi, यानी कि एक ही वेरिएबल रिप्लेस करना है, लेफ्ट कंटेक्स्ट राइट कंटेक्स्ट होगा, बट एक ही वेरिएबल रिप्लेस करना है। उस वेरिएबल को आप किसी भी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं एक्सेप्ट नल। इज इट क्लियर क्लास? आई होप दिस इज क्लियर। क्लास, आई वांट योर रिस्पॉन्स। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? I have tried to told you the difference between the type 0 monotonic and type 1, because we can convert type 0 monotonic to the type 1 grammar. So that's why many times type 0 monotonic grammar is also called as the type 1 grammar, because
टाइप 0 मोनोटोनिक ग्रामर को आप टाइप 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टाइप 1 ग्रामर आप टाइप 0 मोनोटोनिक ग्रामर भी आपकी लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट हो सकती है। दैट्स वाई हम उसको क्या कह रहे हैं, टाइप 1 ग्रामर कह रहे हैं। क्लास, if it is clear, can we move forward? Class, your response is required. Is there someone who is listening my voice? Yes, sir. Yes, sir. Then why you are not responding, भाई? आप लोग जो है रिस्पॉन्ड करते रहिए, जब मैं कुछ पूछता हूं तो यस नो कुछ तो बताइए मुझे, सो दैट आई कैन गेट द फीडबैक वेदर यू आर गेटिंग समथिंग और नॉट। ओके, नाउ ए ग्रामर इज कॉल्ड टाइप 1 इफ ऑल इट्स प्रोडक्शंस आर टाइप 1 प्रोडक्शंस। यानी कि अगर किसी ग्रामर के सारे प्रोडक्शन टाइप 1 प्रोडक्शन है तो पूरी ग्रामर क्या कहलाएगी, टाइप 1 ग्रामर कहलाएगी। बट हम यहाँ देख चुके हैं कि टाइप 1 ग्रामर में हम किसी भी वेरिएबल को नल से रिप्लेस नहीं कर सकते। इज इट ओके? सो द प्रोडक्शंस एस टू नल is allowed in type 1 grammar just to include epsilon in the language। यानी कि अब अगर मेरी लैंग्वेज में एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन को इंक्लूड करने का तो इसके अलावा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता कि मैं स्टार्ट सिंबल से एप्सिलॉन को सीधे ड्राइव करूं, एक प्रोडक्शन ऐसा लिखूं। सो ओनली एस टू नल यानी कि इरेजिंग एस इज अलाउड, okay, just to include epsilon in the language, okay, but in this case s does not appear on the right hand side of any production। यानी कि अगर मेरे कहीं पे प्रोडक्शन s टू नल आ गया मेरे ग्रामर में तो ये s किसी भी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी भी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे आ गया, सपोज कहीं पे ऐसा आ गया b इज इक्वल टू a s, ओके, सो दिस s यू कैन ऑलवेज रिप्लेस विद दिस एप्सिलॉन। तो आप क्या करेंगे, b की जगह इसको रिप्लेस करेंगे तो आपको जो वर्किंग स्ट्रिंग की लेंथ AS थी वो रिप्लेस होकर के क्या रह जाएगी, सिंगल A रह जाएगी। तो वर्किंग स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, रिड्यूस हो जाएगी। लेंथ रिडक्शन इन टाइप 1 ग्रामर इज नॉट अलाउड, सो दैट्स व्हाई अगर S टू नल मैंने इंक्लूड किया है टू इंक्लूड नल इनटू माय लैंग्वेज, ओके, so in that case S should not appear on the right hand side of any production, this you have to keep in mind, okay। So each type 1 grammar will have the productions of the form phi a psi to phi beta psi, where beta cannot be equal to null। Erasing of variables or erasing of something is not possible here, okay। और केवल s to null जहां पे erasing possible है ये प्रोडक्शन हो सकता है अगर null आपकी लैंग्वेज का पार्ट है, बट अगर ऐसा कहीं पे है तो s किसी भी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पर अपीयर नहीं करेगा। दिस इज अबाउट द टाइप 1 ग्रामर। We are moving to the type 2 grammar। टाइप 2 ग्रामर्स में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, A to बीटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन पे क्या होगा, केवल एक वेरिएबल होगा, यानी कि ना तो लेफ्ट कंटेक्स्ट होगा ना राइट कंटेक्स्ट होगा, यानी कि इसमें कंटेक्स्ट है ही नहीं। इज इट? इसमें कंटेक्स्ट है ही नहीं। और प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे क्या होगा, बीटा, where beta can be any string over Vn union sigma। beta can be any string over Vn union sigma, यानी कि variables, terminals, इनका mix कुछ भी यहाँ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, okay। and as it is a Vn union sigma star, beta belongs to Vn union sigma star, तो यहाँ null भी आ सकता है। means erasing a variable is possible in type 2 grammar। Type 1 grammar में erasing of variable was not possible। In type 2 grammar, erasing of variable is also possible। So A belongs to Vn, so this is a variable, and here we can have any string, okay, we can have any string। So यानी कि इसमें context नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, context free। इससे जो पिछली हमारी ग्रामर थी उसमें क्या था, हमारे पास लेफ्ट कंटेक्स्ट भी था, राइट कंटेक्स्ट भी था, इज इट। और उस लेफ्ट और राइट कंटेक्स्ट में हम एक वेरिएबल को किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर रहे थे। फॉर्मेट क्या था, फाई ए साई टू फाई बीटा साई। सो यहाँ लेफ्ट कंटेक्स्ट भी था, राइट कंटेक्स्ट भी था, एंड यू वर रिप्लेसिंग वन variable with some string। So that's why this language was called context sensitive। context sensitive, क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट ऑफ A was dependent on the context, so that's why it was context sensitive। यहाँ आप देखिए
replacement of A by this string beta is not dependent on the context. In any context, in any situation, you can replace this A by beta. So that's why it is called context free. So I hope now you can understand the difference between the context sensitive and context free grammar. Class, is it clear? Difference between the context sensitive and context free grammar is clear? Class. कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है इस ए का रिप्लेसमेंट, जबकि कॉन्टेक्स्ट फ्री में कंटेक्स्ट पे डिपेंड नहीं करता, कंटेक्स्ट है ही नहीं यहां पे, इज इट? सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. अगेन ए ग्रामर is called type 2 या context free if all its productions are type 2 productions. Okay, let us take certain examples. Suppose I have the productions of the form S2A. It is a type 2 grammar or not? देखिए type 2 के लिए मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे केवल एक वेरिएबल चाहिए, तो there is only single variable available. Okay, on the right hand side there can be anything. So यहाँ आप देखिए यहाँ क्या एक सिंगल सिंबल है, सिंगल टर्मिनल है. So beta belongs to Vn union sigma star. So एक सिंगल टर्मिनल यहाँ पॉसिबल है. So it is type 2. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा S2, सपोज ABC. आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे केवल एक वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पे क्या है, इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स. ओके, सो स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स यानी कि केवल सिग्मा से मेरे पास मेंबर्स आए हैं, Vn से भी हो सकते थे, सिग्मा से आए हैं, सो दैट इज अलाउड. सो इट इज टाइप 2. सपोज my production is S2AB. So on the right hand side, left hand side पे single variable है, left hand side पे single variable है जैसा कि मुझे चाहिए था. right hand side पे क्या है, there is a string of variables only. So Vn के members हैं केवल इसके अंदर, is it? So that's why it is also type 2. Similarly S2AB, suppose. So इधर क्या है, मेरे पास एक सिंगल वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या, देयर इज अ स्ट्रिंग ऑफ व्हाट, स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एज वेल एज वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स और टर्मिनल्स का स्ट्रिंग है. सो खाली टर्मिनल हो, खाली टर्मिनल्स का स्ट्रिंग हो, खाली एक वेरिएबल हो, खाली वेरिएबल्स का स्ट्रिंग हो, या वेरिएबल्स और टर्मिनल्स का मिक्स्ड स्ट्रिंग हो राइट हैंड साइड पे, एनीथिंग कैन कम. एज फार एज लेफ्ट हैंड साइड पे केवल एक सिंगल वेरिएबल है, मेरा ग्रामर क्या होगा, मेरा ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा. और अगर मेरे ग्रामर में सारे के सारे प्रोडक्शन टाइप 2 के प्रोडक्शन है, तो मेरी ग्रामर क्या टाइप 2 इज इट क्लास. इसमें वो रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म A2 null also belongs to this type. Okay, so A2 null देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पे एनीथिंग कैन कम, सो इट इज नल स्ट्रिंग. सो Vn union sigma star, इसमें एक मेंबर क्या होगा, नल भी होगा. Okay, so null can also appear here. So this is also type 2. Clearly it is type 2. अगर ये प्रोडक्शन मेरा A2 null होता तो टाइप 2 तो है, बट ये टाइप 1 नहीं हो सकता, क्योंकि टाइप 1 में क्या है, मैं इरेज नहीं कर सकता. टाइप 2 में मैं इरेज कर सकता हूँ वेरिएबल को, टाइप 1 में मैं वेरिएबल को इरेज नहीं कर सकता. टाइप 1 में केवल एक पॉसिबिलिटी थी, S स्टार्ट सिंबल से नल हो सकता था. ओके, बट अगर स्टार्ट सिंबल से नल होता तो S किसी भी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पर नहीं होगा. सो किसी भी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे नहीं अपियर करेगा, डज नॉट अपियर ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन. ओके, so this is type 2. I hope you have understood the difference between the type 1 and type 2 grammars as well. Class, is it clear? Okay, I should not ask as I am not getting any response from your side. I assume that everything whatsoever I am speaking you are fully understanding. So type 3 grammar, I am coming to the type 3 grammar. In type 3 grammar देखिए जो प्रोडक्शन के फॉर्म है, ये दो फॉर्म के प्रोडक्शन हो सकते हैं, और इन दोनों ही फॉर्म में देखिए तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, देयर इज अ सिंगल वेरिएबल, इज इट? तो यहीं से मुझे पता चलता है कि जो मेरे टाइप 2 है वो मेरे टाइप 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि टाइप 2 के लिए भी मुझे लेफ्ट हैंड पे सिंगल वेरिएबल चाहिए और टाइप 3 के लिए भी लेफ्ट हैंड पे सिंगल वेरिएबल चाहिए. यानी कि लेफ्ट हैंड पे सिंगल वेरिएबल है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी या तो मेरा प्रोडक्शन टाइप 2 होगा या मेरा प्रोडक्शन टाइप 3 होगा. ओके, अब अगर राइट हैंड साइड पे कुछ भी है, सो टाइप 2 तो होगा ही होगा, इज इट? लेकिन अगर एक पर्टिकुलर फॉर्म है, या तो एक सिंगल टर्मिनल है,
या एक सिंगल टर्मिनल के साथ एक वेरिएबल है। अगर ये दो फॉर्म मिल रहे हैं सो इट विल बी टाइप 3 ऑल्सो, इट विल बी टाइप 3 ऑल्सो। ओके, लेकिन अब इन दो फॉर्मेट से मुझे एक चीज पता चलती है कि कहीं भी मेरा प्रोडक्शन अगर ए टू नल इस फॉर्म का है, यानी कि इरेजिंग, तो दैट इज नॉट टाइप 3, दैट इज नॉट टाइप 3, दैट इज नॉट टाइप 3। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट मुझे यहां दिया ही नहीं है। राइट हैंड साइड पे या तो एक टर्मिनल होगा या एक टर्मिनल के साथ एक वेरिएबल होगा, नल नहीं आ सकता टाइप 3 में, यानी कि इरेजिंग इज नॉट पॉसिबल इन टाइप 3 एज वेल। सो जैसे टाइप 1 में इरेजिंग पॉसिबल नहीं थी, वैसे ही टाइप 3 में भी इरेजिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि टाइप 2 में मेरी इरेजिंग पॉसिबल है। इज इट क्लियर? So A to null, it will not be type 3, it will be type 2. It will be type 2. अगर type 2 है तो type 0 भी हो सकता है, ठीक है। type 1 अभी मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। ओके, we will prove the Chomsky hierarchy, जिसके बाद हम प्रूव करेंगे कि type 1 भी होगा, type 0 भी होगा। ओके, so I hope it is clear, class. Any other example you take, suppose you have the production of the form A2 single A, B2 single A, these all are type 3 productions. Or you take A2 AA, this is type 3 productions. A to B A, this is type 3 productions. A to A B, this is type 3 production. So जहां पे भी एक वेरिएबल और एक टर्मिनल आ रहा है वो आपका टाइप 3 प्रोडक्शन है, या केवल एक सिंगल टर्मिनल आ रहा है वो भी आपका टाइप 3 प्रोडक्शन है। और अगर मेरे ग्रामर में मेरे सारे के सारे प्रोडक्शंस टाइप 3 हैं, so grammar is called type 3 if all its productions are type 3 productions. Again, जैसे मैंने कहा, productions of the form S2 null is allowed in type 3 just to include the null into the language, otherwise erasing possible नहीं है। और वही अगर S2 null exist करता है मेरे ग्रामर में तो S will not appear on the right hand side of any production, जैसा कि type 1 के केस में था। So this is type 3. So from my side, I have discussed all 4 types of grammar in quite detail with the examples. So now you should be able to differentiate between the type of productions, and then you should be able to find what will be the type of the grammar of given productions. Okay. Before going to some practice examples, I will first discuss the proof of the Chomsky hierarchy. ओके, क्योंकि अभी तक जो चॉम्स्की हायरार्की, अभी तक जो हमने टाइप ऑफ प्रोडक्शंस और टाइप ऑफ ग्रामर्स डिस्कस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग चॉम्स्की हायरार्की जो ये कहती है कि इनर मोस्ट पार्ट इज टाइप 3, उसके बाद इसके बाहर वाला पार्ट क्या है, टाइप 2, इसके बाहर वाला पार्ट क्या है, टाइप 1, और इसके बाहर वाला पार्ट क्या है, टाइप 0। दिस कंटेनमेंट रिलेशनशिप मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि अगर मैं टाइप 1 और टाइप 2 को कंपेयर करूं, टाइप 2 में इरेजिंग पॉसिबल है, यानी A टू नल टाइप 2 होगा, बट A टू नल टाइप 1 नहीं होगा। सो अगर ये टाइप 2 है तो मेरे चॉम्स्की हायरार्की के हिसाब से तो अगर ये टाइप 2 है तो टाइप 1 भी होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज नॉट टाइप 1। सो कैसे ये चॉम्स्की हायरार्की वर्क कर रही है, दिस वी हैव टू सी। सो वी विल गो फॉर द प्रूफ ऑफ द चॉम्स्की हायरार्की। प्रूफ के लिए मैं सबसे पहले कुछ चीजें देख रहा हूं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शंस जो मैंने अभी लिखे, डिस्कस किया आपके साथ, उनको एक बार समराइज करके लिख लिया। टाइप 0 में क्या है, फाई अल्फा साई टू फाई बीटा साई, यानी गिवन लेफ्ट कंटेक्स्ट फाई एंड राइट कंटेक्स्ट साई में आई कैन रिप्लेस दिस अल्फा बाय दिस बीटा। ओके, अल्फा और बीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इज इट? ये मेरा टाइप 0 है। टाइप 1 में, जिसको मैं टाइप 0 मोनोटोनिक या प्योर टाइप 1 डिफाइन कर सकता हूं, तो मेरा होगा टाइप 0 मोनोटोनिक, और ये टाइप 1 प्योर टाइप 1। ओके, दोनों मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि दोनों इक्विवेलेंट हैं। इज इट? सो ये दोनों में क्या है कि देखिए, फाई अल्फा साई और फाई बीटा साई वही लेफ्ट कंटेक्स्ट भी है, राइट कंटेक्स्ट भी है, और अल्फा को मैं बीटा से रिप्लेस भी कर रहा हूं, बट रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अल्फा की लेंथ बीटा से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मींस बीटा की लेंथ रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, अल्फा से छोटी नहीं होनी चाहिए। इज इट? या दूसरे शब्दों में, अगर मैं सिंगल अल्फा की जगह सिंगल वेरिएबल ए ले रहा हूं तो ये बीटा जो है ये नल नहीं होना चाहिए, यानी कि इरेज नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम एक लेंथ यहाँ आनी चाहिए, चाहे एक टर्मिनल आए, चाहे एक वेरिएबल आए, चाहे एक से ज़्यादा
टर्मिनल्स और वेरिएबल्स आए या कोई भी स्ट्रिंग आए, कम से कम 1 लेंथ का स्ट्रिंग आए, 0 लेंथ का स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है, यानी लेंथ रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह टाइप 2 में A टू बीटा फॉर्म, टाइप 3 में A टू A और A टू AB फॉर्म। इज इट? अब अगर मैं इन सबको एनालाइज करूं तो सबसे पहले आप देखिए, बाय डेफिनेशंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शंस, L1, this one, L1 is a subset of L0 or not? L1 means टाइप 1 लैंग्वेजेस का जो सेट है वो टाइप 0 लैंग्वेजेस के सेट का सबसेट है कि नहीं है। सिंपली इन दो चीजों को रिलेट करिए। यहाँ देखिए फाई अल्फा साई, फाई बीटा साई विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन अल्फा एंड बीटा। यहाँ अगर मैं टाइप 0 मोनोटोनिक लूँ तब भी सेम फॉर्मेट है, लेकिन अल्फा और बीटा पर रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अल्फा की लेंथ बीटा से छोटी या मैक्सिमम बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दूं तो कुछ और चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, वो किस में आएंगी? टाइप 0 में, मगर इसमें नहीं आएंगी। तो यानी कि टाइप 1 जो है वो टाइप 0 का एक सबसेट हो गया। इज इट? या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि अल्फा को मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि केवल ए होगा। इज इट? यानी कि मैंने टाइप 0 पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा करके टाइप 1 को फाइंड आउट किया। सो L1 will be a subset of L0. Is it clear, class? Somebody may respond. Is it clear? L1 will be a subset of L0. यानी कि जो टाइप 1 लैंग्वेजेस हैं वो टाइप 0 लैंग्वेजेस का एक सबसेट होंगे। Then come to the next point, that is in which I am claiming that L2 is also a subset of L0. L2 is also a subset of L0. L2 means type 2. टाइप 2 में मैं क्या कह रहा हूं, यहां देखिए मेरे पास कंटेक्स्ट थे, लेफ्ट कंटेक्स्ट था, राइट कंटेक्स्ट था, और मैं अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर रहा था। अल्फा और बीटा पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब मैंने क्या किया, एक तो ये रेस्ट्रिक्ट किया कि ना मेरा लेफ्ट कंटेक्स्ट होगा ना मेरा राइट कंटेक्स्ट होगा, और अल्फा पर रेस्ट्रिक्शन क्या होगी? केवल एक सिंगल वेरिएबल। सो यानी कि उससे मुझे ये मिला, और बीटा तो जैसा था वैसा है, यानी कि बीटा में कुछ भी आ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बीटा जैसा यहाँ था वैसे ही रहा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ए को मैंने कहा से यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा करके पाया कि ना तो लेफ्ट कंटेक्स्ट है ना राइट कंटेक्स्ट है, और अल्फा जो है ये कोई भी स्ट्रिंग नहीं हो सकता, इट विल बी ए सिंगल नॉन टर्मिनल, सिंगल वेरिएबल। इज इट? सो यानी टाइप 0 से मैं टाइप 2 को ड्राइव कर सकता हूँ। इज इट? ओके, सो L2 विल बी ए सबसेट ऑफ L0। ये क्लियर है? Then come on the third one. I say that L3 is a subset of L2. L3 यानी कि रेगुलर, इट इज a subset of L2। देखिए L3 और L2, ये टाइप 2 और टाइप 3 में रिलेशनशिप देखिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिंगल वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पे भी एक सिंगल वेरिएबल है, यानी कि यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ क्या है? बीटा, एनी स्ट्रिंग कैन कम, और यहाँ मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो एनी स्ट्रिंग या तो एक टर्मिनल हो या एक टर्मिनल के साथ एक वेरिएबल हो। यानी कि मुझे जो टाइप 3 का जो फॉर्मेट है वो किससे मिला? टाइप 2 को रेस्ट्रिक्ट करके मिला। टाइप 2 को रेस्ट्रिक्ट करके मिला। जब टाइप 2 को रेस्ट्रिक्ट करके मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि L3 मेरा सबसेट है L2। इज इट? सो जितनी भी टाइप 3 लैंग्वेजेस हैं वो सबसेट होंगी टाइप 2 लैंग्वेजेस का। सो ये 3 पॉइंट मेरे डेफिनेशन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन से क्लियर है। इज इट क्लियर क्लास? अब इसमें यानी कि आप देखिए L1 L0 से छोटा है, L2 भी L0 से छोटा है, और L3 भी L2 से के अंदर है, कंटेंट है। अगर मैं केवल ये चेक कर लूं कि मेरा L2 अगर L1 में कंटेंट है, अगर मेरा L2 L1 में कंटेन हो जाए तो मेरी रिलेशनशिप बन जाएगी। देखिए L0 L1 कंटेन कर रहा है, अगर L1 L2 को कंटेन करने लगे तो देखिए L2 L0 को कंटेन कर रहा है तो L2 जो है L3 को कंटेन कर रहा है। तो L0 में L1, L1 में L2 और L2 में L3, तो मेरा पूरा जो चॉम्स्की हायरार्की की कंटेनमेंट रिलेशनशिप है वो क्लियर हो जाएगी। यानी मुझे केवल ये देखना है कि मेरा L2 L1 का जो है L2 जो है L1 है कि नहीं है। अब मैंने जब इसकी डेफिनेशंस देखी थी, डेफिनेशन में यह था, देखिए यहाँ L2 में A टू नल टाइप का जो प्रोडक्शन था वो शामिल हो रहा था, बट L1 में शामिल नहीं हो रहा था। तो यानी कि मैं कैसे कहूं कि L2 मेरा L1 में कंटेंट है, ये मैं पक्का नहीं कह सकता। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा एनालिसिस और करना पड़ेगा। व्हाट दैट एनालिसिस इज सेइंग दैट L2 में कंटेन प्रोडक्शंस ऑफ द फॉर्म A टू नल, L2 में, टाइप 2 में, while L1 इट इज नॉट अलाउड। L1 यानी कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस में इरेजिंग अलाउड नहीं है। इज इट? अब मैं देखता हूं कि अगर मेरा L1 में
S2 null कोई प्रोडक्शन है, it is allowed only to include null in the language. But in that case, S does not appear on the right hand side of any production. अगर मैं किसी तरह से ये प्रूफ कर दूं कि अगर मेरा कोई टाइप एक CFG है, जो मैं कह रहा हूं दिस इज, अगर एक CFG है मेरे पास जिसको मैं कह रहा हूं G, ठीक है, विद द प्रोडक्शंस ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, जिसमें A टू नल टाइप के प्रोडक्शंस हैं, यानी कि नल प्रोडक्शंस हैं, अगर ये इक्वलेंट हो जाए किसी दूसरी CFG G1 के which has no productions of the form A to null except S to null, and in case अगर S to null आ रहा है तो S will not appear on the right hand side of any production. अगर मैं ये प्रूफ कर दूं ये दोनों इक्वलेंट है तो यानी मेरा काम हो जाएगा. So later on this we will not be proving right now. This we will be proving when we will discuss the normal forms of the text grammars. Okay. तो उस वक्त पे हम एक है सेटअप करेंगे, एक प्रूफ करेंगे जिसमें हम इसको प्रूफ करेंगे कि हमारे पास कोई ग्रामर G है जिसमें नल प्रोडक्शंस अवेलेबल है, तो मैं एक दूसरी ग्रामर G1 लिख सकता हूं जो कि उस G के इक्विवेलेंट होगी जिसमें कोई नल प्रोडक्शन नहीं होगा, केवल मैक्सिमम एक नल प्रोडक्शन हो सकता है, दैट इज S2 नल, अगर नल उस लैंग्वेज का पार्ट है तो. और अगर ऐसा होगा कि S2 नल एक प्रोडक्शन है उसमें, तो S will not appear on right hand side of any production. So I can write such a grammar G1 which is equivalent to G. So at that point of time we will prove it. So right now we are saying that we have such an proof. So means answer to this question is L2 is a subset of L1 is yes. Okay. So answer is yes. And if the answer to this is yes, तो हमारा जो conclusion है that L3 is a subset of L2. ये हमारा किससे आ रहा है, नंबर 3 से आ रहा है. L3 is a subset of L2. L2 is a subset of L1. ये हमने अभी अभी यहाँ बताया आपको कि इसका आंसर क्या है, यस है. इसका जो प्रूफ है दिस वी विल सी लेटर ऑन, बट वी विल प्रूव इट. ओके. और L1 इज सबसेट ऑफ L0. ये कहाँ से आ रहा है, नंबर 1 से. L1 इज सबसेट ऑफ L0. So यानी कि L3 इज a subset of L2 is a subset of L1 is a subset of L0. यानी कि जो मेरे कंटेनमेंट रिलेशनशिप थी, this is type 3, this is type 2, this is type 1, and this is type 0. So this is the Chomsky hierarchy which we have proved. So the containment relationship of Chomsky hierarchy we have proved here. I hope it is clear to everyone. If you have any doubt you can ask, otherwise I will move forward. No response, so I am assuming that it is clear to you. Now we are coming to the questions which you may find in the examination. You will be given a set of productions and then you have to tell what kind of grammar it is. Okay, so there is a set of production P which may consist of multiple productions. So like this production set P consists of 1, 2, 3 and 4 productions. So these are total 4 productions. So S2 capital A small a, this is one production. A to C, this is one production. A to capital B A, this is third production, and B to ABC, this is fourth production. So these 4 productions you are having, and in your production set, and then you have to tell what is the type of the grammar. So to find the type of the grammar, you must find the type of each of the productions. Okay. So let us see which type of production 1 is. जो production 1 है आपका, ये किस type का है? It is type 0, type 1, type 2 or type 3? Class. This response I need from your side. This is which type of production? S2AA, this one, which type of production it is? Yes. Which type of production it is? Okay, it is type 3 production. Why it is type 3? क्योंकि आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिंगल वेरिएबल है. जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपने देखा एक सिंगल वेरिएबल और कुछ नहीं है,
तो या तो टाइप 2 होगा या टाइप 3 होगा। इज इट? टाइप 2 के लिए क्या चाहिए? इधर कुछ भी हो, तो इधर कुछ भी है। इज इट? तो टाइप 2 तो है ये, लेकिन मुझे चेक करना है कि टाइप 3 भी है। यस, देखिए एक वेरिएबल के साथ एक टर्मिनल अवेलेबल है, एक वेरिएबल के साथ एक टर्मिनल अवेलेबल है, सो इट इज टाइप 3। अब जब ये टाइप 2 भी है और टाइप 3 भी है, तो मैं कौन सा टाइप रिटर्न करूंगा? जो फाइनल टाइप है, जो फाइनल टाइप है। ओके, क्योंकि जो टाइप 3 है वो टाइप 2 तो होगा ही होगा एज पर चॉम्स्की हायरार्की, बट टाइप 2 होगा तो टाइप 3 हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए मैं क्या चेक करूंगा यहाँ? जो भी मेरी फाइनल टाइप है, तो फाइनल टाइप क्या है? इट इज टाइप 3, सो दैट्स व्हाई आई विल रिटर्न इट इज टाइप 3। इज इट क्लियर क्लास? It is type 3. Now come on this A to C. A to small c. This is small c. Okay. So it is a terminal. Variable to a terminal. किस टाइप का प्रोडक्शन है ये? क्लास किस टाइप का प्रोडक्शन है? तो कोई तो रिस्पॉन्ड करो। सर सेकंड टाइप का। सेकेंड टाइप का, यस, बिकॉज देखिए यहाँ पर वेरिएबल है एक और राइट हैंड साइड पे कुछ भी हो सकता है, सो इट इज टाइप 2। इट इज टाइप 2। क्या टाइप 3 भी है ये? टाइप 3 में मेरे दो तरह के प्रोडक्शन थे, एक तो वेरिएबल से एक टर्मिनल, या वेरिएबल से एक वेरिएबल के साथ टर्मिनल। सो ये वेरिएबल से टर्मिनल वाला फॉर्म है, तो ये टाइप 3 भी होगा कि नहीं होगा? इज इट? टाइप 3 होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके, क्योंकि टाइप 2 भी है और टाइप 3 भी है, और मैं क्या रिटर्न करूंगा? जो मेरा फाइनल टाइप है, जो हायर टाइप नंबर है, दैट आई विल रिटर्न। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज ए टाइप 3 प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? टाइप 2 भी है, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, टाइप 2 भी है, क्योंकि चॉम्स्की हायरार्की यही कहती है कि अगर टाइप 3 है तो टाइप 2 भी होगा, टाइप 1 भी होगा और टाइप 0 भी होगा। इज इट? आप देखिए A to C। नेक्स्ट आप देखिए A to C, ये टाइप 0 भी होगा। देखिए इसका लेफ्ट कंटेक्स्ट नल है, राइट कंटेक्स्ट नल है। ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। सो आप तो इसको टाइप 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इट इज टाइप 0 एज वेल। ओके, बट मैंने आपको फिर क्या बताया था कि मुझे क्या करना है? मुझे जो फाइनेस्ट टाइप है वो फाइंड आउट करना। सो दैट्स व्हाई इट इज टाइप 3। नाउ टेल मी A to BA, ये किस टाइप का है? क्लास ये किस टाइप का है? वेरिएबल टू ए वेरिएबल विद टर्मिनल, 3। ये टाइप 3 है। आप देखिए अभी तक के जितने भी प्रोडक्शंस मैंने देखे सब मेरे टाइप 3 प्रोडक्शंस हैं। नाउ सिमिलरली ऑन दिस फोर्थ, ये किस टाइप का प्रोडक्शन है? 2 सर। ये ये भी 2 थर्ड टाइप का है। है, ये 3 नहीं है, ये 2 है। क्यों? क्योंकि देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिंगल वेरिएबल होगा तो या तो टाइप 2 होगा या टाइप 3 होगा, टाइप 0 टाइप 1 नहीं होगा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, टाइप 0 टाइप 1 भी होगा, बट मुझे चूंकि फाइनेस्ट टाइप रिटर्न करना है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइप 0 टाइप 1 नहीं है, ये टाइप 2 या टाइप 3 है। अब टाइप 2 या टाइप 3 है, इसके लिए मुझे राइट हैंड साइड देखनी पड़ेगी। अगर राइट हैंड साइड पे सिंगल टर्मिनल होता तो टाइप 3 हो जाता, या राइट हैंड साइड पे सिंगल टर्मिनल के साथ सिंगल वेरिएबल होता तो भी ये टाइप 3 हो जाता, ओ टाइप 3 हो जाता। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट नहीं है, इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स ओनली, स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स ओनली, 3 टर्मिनल्स का स्ट्रिंग है, सो दैट्स व्हाई इट इज टाइप 2। अगर इसकी जगह केवल स्मॉल a b भी लिखा होता तब भी ये टाइप 2 ही होता। क्यों? क्योंकि यस लेंथ 2 है, एक टर्मिनल है लेकिन दूसरा भी टर्मिनल है। अगर एक टर्मिनल के साथ, मान लीजिए एक टर्मिनल के साथ एक वेरिएबल होता तब ये टाइप 3 हो जाता। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्शंस को देख लेंगे। अब देखिए इस सारे जो प्रोडक्शन सेट है इसमें 3 प्रोडक्शन टाइप 3 के हैं और एक प्रोडक्शन टाइप 2 का है। सो मेरे ग्रामर का टाइप क्या हुआ? मेरे ग्रामर का टाइप होगा टाइप 2। क्यों? क्योंकि जब मैं ग्रामर का टाइप देखूंगा तो मेरे जितने भी प्रोडक्शंस के टाइप हैं उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो रिटर्न करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्रोडक्शन, ये तीनों प्रोडक्शन, ये वाला और ये वाला, तीनों टाइप 3 हैं, बट ये वाला प्रोडक्शन टाइप 2 है। तो जो टाइप 3 वाले प्रोडक्शन है इनको तो मैं टाइप 2 लिख सकता हूं, लेकिन इस टाइप 2 वाले प्रोडक्शन को टाइप 3 नहीं लिख सकता। तो यानी कि टाइप 2 वाला तो टाइप 2 ही लिखा जाएगा, या टाइप 1 या टाइप 0 लिखा जा सकता है।
ये टाइप 3 वाला या तो 2 1 या 0, 2 1 या 0, 2 1 या 0 लिखा जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि जितने भी मेरे हायर वाले हैं उनको मैं रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ, और मेरे सारे के सारे किस में आ जाते हैं, टाइप 2 में आ जाते हैं। यानी कि ये भी मेरा टाइप 2 है, क्योंकि टाइप 3 तो हो नहीं सकता ये, ठीक है। ये टाइप 3 था, मगर मैं इसको टाइप 2 कह सकता हूँ, इसको भी मैं टाइप 2 कह सकता हूँ, इसको भी मैं टाइप 2 कह सकता हूँ। तो यानी मेरे सारे के सारे प्रोडक्शन ग्रामर में क्या हो गए, टाइप 2 के प्रोडक्शन हो गए। तो इसलिए मेरी ग्रामर का टाइप क्या हो गया, टाइप 2। आई होप इट इज क्लियर क्लास। यस सर। नाउ वी कम टू द सेकंड एग्जांपल। अगेन इस एग्जांपल में आपको बताना है कि ग्रामर आपकी किस टाइप की। अब ग्रामर का टाइप बताने के लिए सबसे पहले इंडिविजुअल प्रोडक्शंस का टाइप निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला S2ASB, दिस वन, ये किस टाइप का प्रोडक्शन। देखिए लेफ्ट पे एक सिंगल वेरिएबल है, तो क्या होगा, टाइप 2 या टाइप 3, इज इट। अब टाइप 2 है टाइप 3 है, इसके लिए देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या है, टाइप 3 के लिए दो ही फॉर्मेट है, या तो सिंगल टर्मिनल, वो यहाँ नहीं है, या सिंगल टर्मिनल के साथ सिंगल वेरिएबल, वो भी यहाँ नहीं है। यानी कि टाइप 3 नहीं हो सकता। अगर टाइप 3 नहीं हो सकता तो फिर क्या है, ये टाइप 2, इज इट। तो इस तरह से मैंने फटाफट डिसाइड किया कि ये मेरा टाइप 2 प्रोडक्शन है, इज इट। अब S2D सिंगल वेरिएबल है, तो टाइप 2 या टाइप 3 होगा। राइट हैंड साइड पे क्या है, इट इज अ सिंगल टर्मिनल, तो ये क्या हो गया, टाइप 3, इज इट, क्योंकि ये टाइप 3 का फॉर्मेट है, इज इट। फिर टाइप 2 या टाइप 3, ये वाला क्या हुआ, A2 स्मॉल a कैपिटल A। टेल मी क्लास विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन इट इज। टाइप 3। इट इज टाइप 3। अगेन आप देखिए, ये टाइप 2, ये टाइप 3, ये टाइप 3। तो टाइप 2 वाले को तो टाइप 3 लिख नहीं सकता मैं, लेकिन टाइप 3 वाले को टाइप 2 लिख सकता हूँ, इज इट। टाइप 3 को टाइप 2 लिख सकता हूँ। तो सारे के सारे प्रोडक्शन किस टाइप के हो गए, टाइप 2 के हो गए। तो इसलिए ग्रामर का टाइप क्या होगा, टाइप 2। इज इट क्लियर क्लास। ऑन एग्जाम्पल 3, इसमें बताइए फटाफट, पहला प्रोडक्शन एक किस टाइप का है। सर पहला 3 है, दूसरा 2 है। पहला 3 है, दूसरा 2 है, इज इट क्लियर, हर एक क्लियर है। अब 2 वाले को 3 नहीं लिख सकता, लेकिन 3 वाले को 2 लिख सकता हूं, इज इट। मैंने इसको लिखा 2, तो दोनों किस टाइप के हो गए, 2 टाइप के, और टोटल ग्रामर का टाइप क्या हो गया, टाइप 2, इज इट। तो ये 3 एग्जाम्पल से मैंने आपको शो किया कि किस तरह से आप ग्रामर का टाइप फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए पहले प्रोडक्शंस का टाइप फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन का टाइप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो फाइनेस्ट है, जो हायर नंबर है, वो रिटर्न करना है। और जब सारे प्रोडक्शंस का टाइप आ जाए, तो उसमें जो भी हाईएस्ट लोअर नंबर है उसको करना है। यानी कि आप देखिए 2 जिस फॉर्मेट में आप सबको कन्वर्ट कर सकें, वो आपको लिखना है, इज इट। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका बताइए फटाफट, AS2AA, विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन इट इज। क्लास टाइप 2। टाइप 2 के लिए मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। क्या है, सिंगल वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड पे। टाइप 2 और टाइप 3 के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर सिंगल वेरिएबल चाहिए होता है, ध्यान रखिए हमेशा। अब यहाँ पे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पर सिंगल वेरिएबल नहीं है, तो ना तो ये टाइप 2 हो सकता है, ना ये टाइप 3 हो सकता है। या तो टाइप 1 है या टाइप 0। देखना ये टाइप 1 है या टाइप 0 है। तो टाइप 1 या टाइप 0 दोनों के लिए क्या देखते हैं, लेफ्ट कंटेक्स्ट राइट कंटेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। इसका लेफ्ट कंटेक्स्ट है A, इज इट। राइट कंटेक्स्ट इधर से देखते हैं तो ऐसा रहा है, इधर की तरफ कुछ नहीं है, तो यानी कि नल, राइट कंटेक्स्ट है नल। और S को A से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि लेंथ रिड्यूस नहीं हो रही। यहाँ भी लेंथ 1 है, यहाँ भी लेंथ 1 है। एक सिंगल वेरिएबल आप रिप्लेस कर रहे हो, बट लेंथ रिड्यूस नहीं हो रही है, बट इन सम कंटेक्स्ट, सो इट इज टाइप 1। इट इज ओके क्लास, आई होप इट इज क्लियर। ये देखिए, Yes, sir. फाई A psi, phi is A is S and psi is null. Okay, so phi तो ये आ गया, phi beta psi, phi तो ये आ गया, beta is small a and psi is null. Okay, so a को आप बीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेंथ रिड्यूस नहीं हो रही है, ये सिंगल वेरिएबल एक सिंगल टर्मिनल में कन्वर्ट हो रहा है, लेंथ दोनों तरफ 1 है, इज इट। तो इट इज टाइप 1। नाउ कम ऑन दिस वन, A2CA। अब देखिए, जैसे ही आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिंगल वेरिएबल, तो या तो टाइप 2 है या टाइप 3 है। अब टाइप 0 टाइप 1 का क्वेश्चन ही नहीं है, इज इट। और जब भी सिंगल वेरिएबल ना हो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो या तो टाइप 0 या टाइप 1, उन दोनों में से किसी एक को चेक करना है, इज इट। सो ए, तो ये टाइप
2 है, टाइप 3 है? ये टाइप 2। ओके, A to B, ये क्या है? दिस वन टाइप 3। ये टाइप 2 है। टाइप 3 कैसे है? देखिए, टाइप 3 के लिए या तो एक सिंगल टर्मिनल होना चाहिए था, सिंगल टर्मिनल नहीं है, इट इज ए वेरिएबल, इज इट? या फिर एक टर्मिनल के साथ एक वेरिएबल होना चाहिए, वो भी नहीं है। ये क्या है? सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। सो ये जो टाइप 3 के दो फॉर्मेट है, दोनों में से किसी फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता, इज इट? सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो टाइप 2। ओके, टाइप 2 क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल, राइट हैंड साइड पे एनीथिंग, राइट हैंड साइड पे एनीथिंग। और टाइप 3 में क्या है? वो एनीथिंग या तो एक टर्मिनल हो या एक टर्मिनल के साथ एक वेरिएबल हो। अगर ये दोनों में से कोई है तो टाइप 3, वरना टाइप 2, इज इट? सो दैट्स व्हाई इट इज टाइप 2। क्लियर है क्लास? इट इज टाइप 2। नाउ कम ऑन दिस वन, B to ABC, टाइप 2। किस टाइप? टाइप 2, यस। सिंगल वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड पे तो टाइप 2 है, टाइप 3 होगा। राइट हैंड साइड देखेंगे, या तो सिंगल वेरिएबल हो या सिंगल वेरिएबल के साथ, या तो सिंगल टर्मिनल हो या सिंगल टर्मिनल के साथ सिंगल वेरिएबल हो, दोनों में से कुछ भी नहीं है। टाइप 3 नहीं है तो क्या होगा? टाइप 2, एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, इज इट? अब आप देख लीजिए, टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2, ये टाइप 1। अब टाइप 1 वाले को तो आप टाइप 2 नहीं लिख सकते, लेकिन टाइप 2 वाले जितने भी हैं उन सबको टाइप 1 लिख सकते हैं एज पर द चॉम्स्की हायरार्की, इज इट? सो पूरी ग्रामर का टाइप क्या होगा? टाइप 1। इज इट ओके क्लास? इस पूरी ग्रामर का टाइप क्या है? टाइप 1। कम ऑन दिस एग्जांपल 5, फटाफट देखिए इसको। S2 ASB, ये किस टाइप का है? देखिए, सिंगल वेरिएबल है इस पे, और ये टाइप 3 को नहीं फॉलो कर रहा, तो ये क्या होगा? टाइप 2 होगा। इसी तरह S2D, ये टाइप 3 होगा। AS2A, ओके, देखिए ये लेफ्ट कंटेक्स्ट, ये क्या आ रहा है? लेफ्ट कंटेक्स्ट। तो लेफ्ट कंटेक्स्ट हो गया, राइट कंटेक्स्ट तो नल होगा, राइट कंटेक्स्ट यहाँ भी नल है। एस को किससे रिप्लेस कर रहा है? नल से रिप्लेस कर रहा है। ओके, यानी कि लेफ्ट कंटेक्स्ट भी है फाई अल्फा साई, इज इट? ये फाई बीटा साई, सो बीटा भी नल, साई भी नल। ओके, सो ये कंटेक्स्ट भी है, और साथ में आप अल्फा को बीटा में रिड्यूस कर रहे हैं, और बीटा की लेंथ अल्फा से क्या है? कम है। सो यानी कि ये किस टाइप का होगा? इट इज टाइप 0, इट इज नॉट टाइप 1, क्योंकि देखिए लेंथ रिड्यूस हो रही है। टाइप 0 और टाइप 1 में क्या डिफरेंस है? लेफ्ट राइट कंटेक्स्ट होंगे मगर लेंथ रिड्यूस होगी, इज इट? ये टाइप 0, और अगर लेंथ रिड्यूस नहीं होगी तो टाइप 1। सो दैट्स व्हाई इट इज टाइप 0। अब इन तीनों में आपका कौन सा टाइप है? 2 है, 3 है, 0। 0 वाले को तो 0 लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते, बट 3 वाले को आप 2 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। 2 वाले को आप 1 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे? दोनों को 0 लिखेंगे, और ग्रामर का टाइप क्या होगा? टाइप 0। इज इट क्लियर? देन दिस लास्ट वन, जल्दी से बताइए इस ग्रामर का टाइप क्या होगा? एंड वी विल क्लोज। What will be the type of this grammar? Type 3. Yes, answer is type 3. क्यों? क्योंकि S2AS, this is type 3. Single terminal के साथ single variable. BS, this is also type 3. Single terminal के साथ single variable. Single terminal, it is also type 3. Single terminal, it is also type 3. यानी कि चार प्रोडक्शन थे इसमें, चारों के चारों type 3 थे. So that's why the type of grammar is type 3. Is it okay, class? So this was all I wanted to discuss for today. I hope now you will be able to do the questions in the examination. अगर आपको ग्रामर दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि which type of grammar it is, या आपको इंडिविजुअल प्रोडक्शन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है किस which type of production it is. Okay? So चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आने की संभावना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की अच्छी संभावना हो सकती है. Is it? So this is all for today. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, I am closing class. Can I close?